Hello students, good afternoon to all. This is Satyaranjan Behra, teacher of English from Subhash Chandra High School, Sadar Block, Sundargarh. Dear students, it's my pleasure to be integrated with you after a long time. So you are preparing for your board examination very seriously, I know it very well, dear students. And dear students, you know that your board examination is gradually approaching, which is scheduled to be held from 21st February to 6th of March. So this period is very crucial period for all of you. I hope you must be preparing seriously for the forthcoming examinations. So dear students, in your examinations, in your subjective part, you will come across different types of questions like long questions, short questions from your prose and poetry. You will also asked to write essay and letter writing also, translation, report writing, summary writing and unseen passage writing. So among all these questions, unseen passage is one of them. It is very important. So today we will be discussing about how to write the answers of unseen passage. So we will have a clear discussion regarding unseen passage which carries 5 marks. It contains 5 questions and carries 5 marks. So without delaying, let's proceed to the smart board and start our discussion. Okay. So students, unseen passage, very important for your forthcoming board examinations. Okay, so most of the students find it very difficult to answer the examinations. They do not know how to answer the unseen passage. They do not know how to answer the unseen passage. So unseen passage, the mark fetching area, mark fetching passage or questions, especially for all the students, and very especially it is very important for the slow learners or the weaker students. So students should not leave unseen passage, but it is seen most of the students are leaving unseen passage because they do not know how to answer the questions. They do not even understand what is unseen passage. They do not have any basic idea regarding unseen passage. But I will make it easy through this virtual studio. Okay, dear students. So unseen passage means, what is unseen passage? Unseen. There is a word you must have heard, known the word seen. So ta purvare gota on lagela, un on prefix lagela. Seen means which is seen, which is known to you. And unseen means the passage. Unseen passage means so the passage which is not known to you earlier. The passage which is not known to you earlier. That's why it is an unseen passage. You have seen a number of passages. You have gone through a number of passages through in course of your reading. But some of the passages are there which is quite unseen to you, which is quite unknown to you. That's why it is known as unseen passage, or in Odia we can say Odekha Parichada, like this. Okay. So this unseen passage carries 5 marks. There will be 5 bit questions and each question carries 1 mark. Earlier it was 10 marks, but now it has reduced to 5 marks. But it is very important, dear students, this is very important. So let us now see the points to, what are the points, what are the important points or what are the basic points to practice or to do an unseen passage. Right. First of all, you know, I have already told you 5 bit questions based on an unseen passage are to be answered in 1 or 2 sentences. You will have to answer the questions in 1 or 2 sentences. Right? Gute kimba duiti sentences tume taku answer kordabo. You will have to write maximum 1 or 2 sentences. Don't write more than 2 sentences or beyond the answer level. Then you know each question carries 1 mark. There will be 5 questions. Each question carries 1 mark.
and total mark is 5 marks. Okay, if you attentively try to do it, you will definitely secure 5 marks. ପିଲା ମାନେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କଲେ 5 ରୁ 5 ରଖିଦବ. It is very easy. So what is your duty? First read the passage carefully. First of all, dear students, you have to read the passage carefully. So unseen passage develops your reading skill. It develops your reading potentiality. How much potentiality does a student have regarding understanding the passage? तुम जानछ तो हमें रीडिंग कैपेसिटी केते अछि, तुमर वोकाबुलरी केते आइडिया अछि, तुमे रीडिंग करी करी अंडरस्टैंडिंग ताको केते करि पारछो, सेटा अनसीन पैसेज रे पिला माने हमें टेस्ट को सेटा को टेस्ट करा जाय. सो योर ड्यूटी, योर प्राइम ड्यूटी, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रीड द पैसेज केयरफुली. यू मस्ट रीड द पैसेज केयरफुली. केयरफुली मीन्स अटेंटिवली, मन देकरी माइंडफुली पिला माने यू ट्राई. मु जाने फास्ट रीडिंग ता तुमको बोरिंग लागिबो, बट यू ट्राई योरसेल्फ. मु जेमति कहूची पिला माने चेष्टा करिवो केयरफुली एंड ट्राई टू हैव ए जनरल आइडिया ऑफ द कंटेंट ऑफ द पैसेज. पिला माने आफ्टर रीडिंग यू ट्राई टू फाइंड आउट द मेन आइडिया और व्हाट इज द आइडिया व्हिच इज बेस्ड ऑन इन दिस पैसेज और इन दिस पैराग्राफ. ए पैराग्राफ ता को कोई विषय देछि कंटीन्यूअस रीडिंग फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट रीडिंग कला परे पिला माने गोटे जनरल आइडिया हे जिवो. रिपीटेडली सेटा को पढिले किछि गोटे माइंड रे आसीबो, डेफिनेटली विल फील इजी. तेणु पिला माने टिके पिला माने तमे निश्चित रूप से याकू केयरफुली पढिबो. पिला माने बहुत इंपोर्टेंट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लिविंग दिस क्वेश्चन ताको छाडी दोछ पिला माने, किंतु मु गारंटी देकि कहबी यू विल सिक्योर 5 to 5 मार्क्स. खाली मो कथा टिके मानो, मु तुमको बढ़िया बढ़िया टिप्स देबी पिला माने. डोंट वरी. ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपोर्टेंट. ट्राई टू फाइंड आउट द जनरल आइडिया, then read the questions. Okay, then read the questions. First read the paragraph. पिला माने first read the paragraph, first read the passage, understand it, try to find out the content, try to find out the main idea, try to know what is this passage about. पिला माने कोन देइछि, बारंबार जदि हमें गोटे जिंसटा को रिपीटेडली पढिबा तले कोन देइछि किछि गोटे अंडरस्टैंडिंग हे जिवो जेमतेले पिला माने. डोंट बी डिसअटेंड, हताश होनी पिला माने. डोंट लॉस करेज एंड रीड द पैसेज वेरी केयरफुली and attentively. मन देखिरी पढ़ो. So after reading the passage, then you read the questions. Then you read the questions one by one. तापर क्वेश्चन को पिला बेले पढ़िबो one by one and try to understand what has been asked about each questions. पिला माने पढ़ी सारला पर क्वेश्चन कोन करिवो, you read the questions and you try to make out, you try to understand what has been asked about in each questions. प्रत्येक प्रश्न रे कोन पचरा जाइछि, प्रश्नर माने कोन. डब्ल्यूएस क्वेश्चंस दिया जाइथिबो पिला माने नै कि हु व्हाट व्हिच सब लागि हेइथिबो. तेनु यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कोन प्रश्न कोन पचारुछि. हम जेम जानछु व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वेयर आर यू कम फ्रॉम, एमति क्वेश्चन तो सब होउछि ना पिला माने नै कि व्हाट वाज द रेस्टोरेंट लाइक, वेयर डिड लंच लिव. एमति क्वेश्चन तो पिला माने क्लास रे डब्ल्यूएस क्वेश्चन तो प्रत्येक तमे टॉपिक रो परे पढुछो सेमति सेही शब्द गुडा को नै कि क्वेश्चन दिबो पढिबो. अच्छा, एटी गुटे पिला माने मन रख, मैक्सिमम पिला माने कोन करंती साइमल्टेनियसली से माने कोन करंती पिला माने इयाडे पैराग्राफ को भी पढिबे आ ता संगे संगे क्वेश्चन को पढिबे. गुटे क्वेश्चन को पढुथबे पुनी पैराग्राफ को अनुउथिबे. सो दिस इज नॉट ए गुड हैबिट. दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू आंसर, टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द अनसीन पैसेज. एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग तुम नहीं जीवो, तापर क्वेश्चन टा को पढिबो. व्हाइल रीडिंग क्वेश्चन यू फोकस ऑन क्वेश्चंस, व्हाट इज दिस क्वेश्चंस आर, ए क्वेश्चन गुडी को केउ विषय देछि. देन देयर आफ्टर यू गो टू द पैराग्राफ एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. हला ताको कोइ तापर नेक्स्ट वन. देन मेक ए सेकंड रीडिंग अछि पिला माने टू फाइंड आउट द रिलेवेंट पॉइंट्स. सेकंड रीडिंग कला बेले पिला माने क्वेश्चन पढि सारलो, तापर सेकंड रीडिंग जदी करूसो कर तले फर्स्ट रीडिंग करी करी तापर सेकंड रीडिंग रे क्वेश्चन करि पारो, तापर थर्ड रीडिंग करी करे क्वेश्चन को भी तुम फाइंड आउट कले भी आंसर टा भी हेई पारिबो, सेमति हेई पारिबो. बट इट डिपेंड्स अपॉन यू अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स. इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट इज योर चॉइस. ओके, देन मेक ए सेकंड रीडिंग एंड व्हाइल रीडिंग सेकंड रीडिंग फाइंड आउट द रिलेवेंट पोर्शन. रिलेवेंट पोर्शन मींस रिलेटिव जिंस गुडा को क्वेश्चन रे जो सब जिंस गुडा को कहूची आस्किंग करूची सेही क्वेश्चन गुडा को आमे ता रिलेटिव जिंस गुडा को सेठी खोजी के बाहर जाको चेष्टा करबा. ओके पिला माने यू कैन गेट द आंसर टू ईच क्वेश्चन. पढला बेले निश्चय क्वेश्चन मिलिबो, कारण मैक्सिमम क्वेश्चंस गुडा को केउ टाइप रो क्वेश्चन रहबो. मु जस्ट के कहबी तुमको पिला माने से विषय. नेक्स्ट पॉइंट को जिबा.
What is the important point? You should remember that comprehension test does not mean copying out the exact sentence from the passage. पिला में comprehension test, reading passage रे पिलार comprehension test, तार reading ability मु कहूतली, तार vocabulary idea, तार grammatical concept ए सब जिनस रे टेस्ट करा जाए normally. हला आउ तेनु सेथि भाई पिला माने you should remember that comprehension test एटी होछ. Reading passage means comprehension test. It means you do not copy the exact sentence from the passage. खाली पिला माने कॉपी करिक सेंटेंस टाकू एक्जाक्ट सेंटेंस को लिखि देले तार आंसर ता एप्रोप्रिएट हे परिबो नाही. You will have to write it according to the tense, okay, according to the tense and reported speech. तुमको निज लैंग्वेज ताकू लिखिबा को पढिबो. However तथापि कहिबा कोन प्रॉब्लम सब अछि पछे कहिबी. You have to answer according to the structure of the question sentence. हैला पिला माने question रो भी गोटे स्ट्रक्चर अछि. All the questions are having a structure. सब क्वेश्चन रो लेखा स्ट्रक्चर अछि. तेनु क्वेश्चन रो स्ट्रक्चर अनुसार तार सब्जेक्ट तापरे वर्ब रहइबो तापरे ऑब्जेक्ट रहइबो ताकू अफर्मेटिव बा डिक्लेरेटिव सेंटेंस करि कि हमें क्वेश्चन रो स्ट्रक्चर अनुसार लिखिबा. नॉर्मली क्वेश्चन जो टेंस रे थाय उत्तरटा भी से टेंस रे ठीक थाय. नेक्स्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द क्वेश्चन सेंटेंस. पिला माने क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. This is very important my point of view. Answer according to the tense of the question sentence. पिला माने normally question जो tense रे थिबो तमे उत्तर सही tense रे करिवो. तापरे try to answer in indirect speech. Okay, passage ता directly थाए से speaker जने थाए ताकू तुमे reported speech you will have to write the unseen passage in your own words, that is in reported speech or indirect speech जे ताकू तुमे लेखिबा को चेष्टा करिवो. So these are the basic points, these are some of the important points to be remembered while attending the unseen passage. Okay, ठीक अछि पिला माने it carries 5 marks. पिला माने मन रखो जे एग्जाम रे गोटे unseen passage गोटे जिंसो अछि पिला माने ठीक अछि. तापरे क्वेश्चन वर्ड्स टिके थि मु लिखि दिछि पिला माने अनेक पिला माने टिके बुझी परंतनि क्वेश्चन वर्ड्स कोन सब क्वेश्चन वर्ड्स देखो पिला माने नॉर्मली अनसीन पैसेज रे हमें सब क्वेश्चन पाइबा व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, whom, whose, why आउ व्हिच एई ओडा को सब क्वेश्चन वर्ड सब रहिबो एटा पिला माने ठीक अछि. जो माने टिके जानू न से माने को पई एटा मु कर देछि. मैक्सिमम पिला जानू छ आजकल पिला माने व्हाट रो अर्थ देखो लिखि देछि. व्हाट माने कोन इन्फॉर्मेशन asked about information or things. What is asked about information or things. हला क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट ते कोले इन्फॉर्मेशन पाइबा थिंग्स पई व्यवहार करा जाय. सिंध व्हेन ता टाइम पई लागे डे डेट मंथ और ओकेजन पई हमें व्हेन लगाइबा. वेयर ता प्लेस लोकेशन जाने पई वेयर इज द पुलिस स्टेशन, वेयर इज द रेलवे स्टेशन, वेयर वाज गांधीजी बॉर्न लाइक दिस नै कि प्लेस एम तीसरा को हमें जानिबा चेष्टा करबा. ठीक है रीडिंग करबा सेडा को हाउ किपरि एथरे मैनर प्रोसेस कंडीशन क्वालिटी को हमें एथरे जानि थाउ. ठीक अछि. हु माने कटा गोटे कोन डब्ल्यूएस क्वेश्चन यूज्ड फॉर पीपल एज सब्जेक्ट अनुसार नै कि who is the chief minister of Odisha, who is the headmaster of your school ei bela gote question thibo. Who is the captain of Indian cricket team, right? Whom mane kon used when the person received the action kahaku nei ki whom do you respect more, your father, or whom do you love more, your father or mother, right? ठीक अछि. whom mane kahaku सेति whose eta gote possession अर्थ लागिबो. belongings to बुझेबो. whose mane whose pencil is this, whose bicycle is this. ठीक है पोजीशन को कहूची. सेंते व्हाई रीजन पई लागे व्हाई आस्किंग अबाउट रीजन व्हाई. तापर व्हिच माने कोन व्हिच अर्थ ला केउटी फॉर थिंग्स एनिमल्स समटाइम्स पीपल पई मानन को पई मध्य एई सब डब्ल्यूएच व्हिच वर्ड ता व्यवहार मध्य करा जाय. सो दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स पिला माने एगुडार अर्थ भी पिला माने मैक्सिमम नंबर पिला माने अछंती एडा मीनिंग उडा को जानु नांती. सो दे डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. With the help of these WH words, you will be able to understand the question. If you will able to understand the question, you will be able to find out the what answer. Okay, pila mane. So it's all right. So I know unseen passage may be very boring. You must be feeling very boring for my teaching. पिला माने पढ़ा तुमको आज भलो लागु नथो मु जानि छि काहे ना अनसीन पैसेज कहला माने समस्त को भलो लागे नाही. बट तुमे जदी ता ऊपर फोकस करबो तुमे बढ़िया आंसर करि परबो. सो यू मस्ट बी फीलिंग बोरिंग. सो लेट्स वॉच ए शॉर्ट वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स. ओके पिला माने गोटे वीडियो देखि देबा ठीक भलो लागिवो. तापर पुनी अनसीन पैसेज ताकू पढिबा आगे ठीक वीडियो देखि देबा भलो लागे. Stuck together, I don't believe it. Unseen hitting, not like this. Massive, absolutely massive. Forget them two, it's all about him.
Yuvraj Singh, 50, 12 delivery. You're kidding me? Terrific effort this. That's the second. Number 3, long off. Number 4, backward point. It's every part of the ground. This one, over square leg. And this the last one. To make it 36 in that over. That's the full Monty. So how was this video? Definitely very interesting. And what was the video about? Definitely the video is about Yuvraj Singh, the former Indian cricketer who slammed huge sixes, 6 sixes in an over 20 during T20 World Cup 2007. So on the basis of the performance of Yuvraj Singh, must have heard the name of Yuvraj Singh, who has already taken retirement from Indian cricket, but he is an excellent player, and Abhishek Sharma is the disciple of Yuvraj Singh. So I have prepared a very good passage so that you will not feel boring. Okay, so this passage is about Yuvraj Singh. पहले हमने युवराज सिंह विषय में पैसेज टा पढ़िबा तापर एटी क्वेश्चन अछि पिला माने वो क्वेश्चन पचारबी तुमे फाइंड आउट करबो आंसर आ मते ओके सो लेट मी read the passage. So you see, Yuvraj Singh is one of India's most powerful and fearless batsmen. Right? During the 2007 T20 World Cup, held under the captainship of MS Dhoni, Mahendra Singh Dhoni, he created history. He created history by hitting 6 sixes in 1 hour against England. Right, pilamane? The unforgettable moment took place when Stuart Broad was bowling. Yuvraj's quick timing and confidence turned the match in India's favor. ठीक अछि पिलामाने सो पिलामाने हमें वर्तमान क्वेश्चन एठी देखिबा on the basis of this paragraph हम क्वेश्चन देखिबा you read this first reading करबो पिलामाने जो प्रोसेस बतेथली reading कला पर तुमे कोन करबो try to understand, find out the main idea, then read the question and try to find out the answer. Right? Question number 1. Here is a question number 1. Who is one of India's most powerful and fearless batsmen? पिलाने देखो एठी तुमे पढ़ो आ क्वेश्चन आंसर को खोजो पिलाने तुमे देखो जेते बेले तुमे पढ़िबो पढ़ला बेले पिलाने तुमे कोन करिवो ना एठी देखो एठी जो वर्ड अछि एटा देखो फर्स्ट देखो टेंस हु माने किए इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट देखो गोटे वर्ड अछि पावरफुल तापर आ गोटे वर्ड अछि पिला माने कोन फियरलेस आ गोटे वर्ड अछि पिला माने कोन फियरलेस गोटे वर्ड अछि नै कि हेले देखो ए पावरफुल और फियरलेस वर्ड को नै गिरी तुमे जो माने दुर्बल पिला जो माने जानू न खोजो ताको क्लासरूम रे देखो पाइबो पढी गिरी एवं एटा होछि गोटे फैक्चुअल क्वेश्चन एगुडा को तम पई नुहे फैक्चुअल क्वेश्चन माने मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्चुअल इन्फरेंशियल क्वेश्चन उडा को तमर बोर्ड रे रहइबो माने इन्फॉर्मेशन फीडिंग फैक्चुअल क्वेश्चन माने कोन जो क्वेश्चन रो आंसर ता को तुमे इजीली पॉइंट आउट करि पारिबो ताको कहंती फैक्चुअल क्वेश्चन. So now tell me, who is one of India's most powerful and fearless batsmen? Answer. Logile school. Yes. ठीक है. कोई पिला ठीक है. Microphone धर लो पहलो. Yes. Read the paragraph and answer the question. Yuvraj Singh. Very good. Yuvraj Singh. नहीं कि देखो इटे लिखा है Yes. हाँ. को Yuvraj Singh is one of India's जो माने न जानु छ मु ताको कथा कहूची जो माने इंटेलिजेंट जानिबो देखो एटी पावरफुल गोटे वर्ड एठी अछि एटी फियरलेस अछि तमे कोन करिवो रीडिंग कला बेले सेही वर्ड को फोकस करिवो क्वेश्चन जो प्रेजेंट टेंस रे इज रे अछि आंसर भी प्रेजेंट टेंस रे हबो एटी देखो पिला माने हु अछि ए हु टा को हमें कोन कर देबा ना ए सब्जेक्ट रिप्लेस कर देबा युवराज सिंह रे नै कि युवराज सिंह वर्ड रे हमें ताको रिप्लेस कर देबा सो व्हाट विल बी द आंसर ए जगह जस्ट खाली ए जगह रे हमें लिखि देबा युवराज सिंह. Yuvraj Singh is one of India's most powerful and fearless batsmen. Most powerful and fearless batsmen. So you have given right answer. Every good question रहिबो. First question पिला माने पूरा directly easy question रहिबो and you will be definitely able to answer the question.
टिके धीरे धीरे भितर को कर पारिबो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा पिला माने अगेंस्ट व्हिच टीम डिड युवराज सिंह हिट 6 sixes against which team read and find out the answer against which team did Yuvraj Singh yes hit 6 sixes you will have to write only the name of the team in with complete sentence pila mane against which team did Yuvraj Singh hit 6 sixes tell me the answer yes anybody else who will be able to answer against which team प्रश्नटा बुझला माने बुझिलो कि नहीं केउ टीम अगेंस्ट रे यस गोटे टीम रो ना अछि देखो गोटिया टीम अछि पिला माने यस इट इज इंग्लैंड नै कि सो युवराज सिंह हिट 6 sixes नै कि अगेंस्ट पिला माने कोन इंग्लैंड देखो गोटे टीम अछि तणु इंग्लैंड को नामा हेले कोन करबा आंसर केमति लिखिबा एठी देखो एठी डिड अछि पास्ट टेंस अछि सब्जेक्ट के पिला माने युवराज सिंह सब बेले सब्जेक्ट आगे रहबो ले प्रथम आसिला सब्जेक्ट युवराज सिंह तापरे कोन आसिला भर्ब आसिला पिला माने हिट नै कि हिट गोटे भर्ब बटे HIT हिट माने स्लाम खूब जोरे प्रहार करिबा हिट रो पास्ट टेंस भी सेही V2 हिट रहइबो तेनु कोन करिबा युवराज सिंह हिट 6 sixes तापरे लिखि दबा अगेंस्ट तापरे आनिबा कोन इंग्लैंड अगेंस्ट इंग्लैंड हेले कंप्लीट आंसर देले you will able to get 1 mark you will be given 1 mark you will give the complete answer देले पिला माने आंसर तुमे फुल मार्क पाइबो 1 मार्क पाइबो नले हाफ मार्क भी सर देई पारंती बट मैक्सिमम टीचर देई भी पारंती हाफ जगह फुल भी दे पारंती बट you will have to answer the question in full sentence or complete sentence so you have successfully given the answer to question number 2 टा भी देखो गोटे इन्फरेंस गोटे फैक्चुअल क्वेश्चन पिला माने फैक्चुअल मैक्सिमम आवर फैक्चुअल क्वेश्चन इन्फरेंशियल क्वेश्चन बेले बेले गोटे ग्लोबल क्वेश्चन भी एग्जाम रे पिला माने पढ़ी थाए नै कि ना कोन पिला माने तेणु देखो सेकंड क्वेश्चन रो भी आंसर तुमे पाई गलो तापर क्वेश्चन नंबर 3 को पिला माने देखो हाउ डिड ही चेंज द कोर्स ऑफ द मैच देखो पिला माने ही मींस युवराज सिंह नै कि एडी देखो हाउ डिड ही चेंज द कोर्स ऑफ द मैच try to find out the answer देखिबा पिला माने this question is an inferential question एगुडा को जो ब्रैकेट लगे नॉट फॉर यू खाली जस्ट कहया पाई लिखिछि पिला इन्फरेंशियल क्वेश्चन माने पिला माने सबु क्वेश्चन दा डायरेक्ट क्वेश्चन रहइबोनी फर्स्ट टू क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन तला थर्ड क्वेश्चन दा टिके इनडायरेक्ट क्वेश्चन आंसर इज इन दिस पैराग्राफ इन दिस पैसेज बट यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर केयरफुली ओके टिके तुमको खोजेउ पड़िबो हाउ डिड ही चेंज द कोर्स ऑफ द मैच ता माने कोन क्वेश्चन रो माने कोन हाउ डिड ही मींस के ही मींस युवराज सिंह माने युवराज सिंह मैच रो गतिपथ को केमिति बदलै देले यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड द वीडियो आल्सो युवराज सिंह मैच रो गतिपथ को केमिति बदलै देले हाउ डिड ही चेंज सिंपल पास्ट टेंस रे अछि डिड नै कि हाउ डिड ही चेंज द कोर्स ऑफ द मैच हाउ डिड ही चेंज एनीबॉडी एल्स टिके देखिलो पिला माने कोन हेतिबो आंसर ओवरऑल देखिलो पिला माने यस ट्राई योरसेल्फ दुईटा क्वेश्चन देगिरे तमे 1 + 1 2 मार्क्स पिला माने पाई सरलणी यू हैव ऑलरेडी स्कोर 2 मार्क्स थर्ड नंबरटा केमति करबा प्लीज स्टैंड अप आउट पेस अछि पिला माने यस एनीबॉडी एल्स माइक्रोफोन दो पिला माने चेष्टा करो जहा जानू सब कुह देखो हे जीवो मु हेल्प कर देबी प्लीज स्टैंड अप पिला माने सरगड रो पिला माने बढ़िया सब स्कूल बढ़िया पिला माने टिके छिया लो प्लीज ट्राई योरसेल्फ ना छाड़ी दो पिला माने एग्जाम रे एमिति इन्फरेंस टिके इनडायरेक्ट क्वेश्चन ता अछि पिला माने हाउ डिड ही चेंज द कोर्स ऑफ द मैच युवराज सिंह एमिति कोन कले जे मैच रो गति पथटा बदली गला पिला माने हाउ डिड ही चेंज डेफिनेटली कोन हो व्हाट विल बी द आंसर बाय हिटिंग 6 sixes पिला माने एटा होची तार आंसर बाय हिटिंग 6 sixes हेले केमति लिखबा आंसरटा देखो आंसर कोन होची बाय हिटिंग 6 sixes in 1 over he hit 6 sixes 6 number of sixes in 1 over and that changed the course of the match okay तो आंसर केमति लिखिबा कोन लिखिबा he एडी डिड अछि डिड लहला पले चेंज रे कोन पळे आसीबो डिड ता आसी चेंज रे मिसी गेला he changed the course of the match एतकी दूर पळे आसिलो तापर कोन लिखिबो by hitting 6 sixes in 1 over देखो एतकी जिनसटो एटी जोड़ीबार अछि पिला माने
केमती लिखिली प्रथम ही टाकू सब्जेक्ट करदेली एच टा बड़ होगा चेंज रे डी कहीं लगला पास्ट टेंस कहीं गला क्वेश्चन जदि पिला माने डी रे अछि माने भर सेकंड फॉर्म हबो ही चेंज द कोर्स ऑफ द मैच क्वेश्चन मार्क काटी दला तापरे बाय हिटिंग 6 सक्सेस इन 1 ओवर और इन ए ओवर क्लियर पिला माने हला पिला माने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 को देखिबा व्हेन डिड ही क्रिएट हिस्ट्री व्हेन डिड ही क्रिएट हिस्ट्री व्हेन डिड ही क्रिएट हिस्ट्री से केते बेले इतिहास सृष्टि कले व्हेन डिड ही क्रिएट हिस्ट्री व्हेन टाइम व्हेन टा गोटे टाइम एडवर्ब नहीं कि मु तुमको कहितली डब्ल्यूएच वर्ड व्हेन टाइम व्हेन डिड ही क्रिएट हिस्ट्री आ गोटे क्वेश्चन पुनी देखो हाफ हाफ अछि एथि एटी दुईटा क्वेश्चन अछि हु वाज द कैप्टन देन हु वाज द कैप्टन देन केतबेले से इतिहास सृष्टि करले सेबेले कैप्टन किए थिले एई क्वेश्चन को दुईटा क्वेश्चन अछि एटा कोन हबो हाफ प्लस हाफ ए दुईटा को मिसे कि हम एथि 1 मार्क रहइबो एथि पिला माने बुझियो जे त पिला माने एथि हाफ हाफ मार्क कंसीडरेशन करा जिवो व्हेन डिड ही क्रिएट हिस्ट्री फास्ट करो पिला माने व्हेन डिड ही के माइक्रोफोन धरलो यस से झटी कहबो हां कहलो यस माइक ऑन करो प्लीज स्विच ऑन द माइक अलाउड वेरी गुड को सुनी पिला माने नॉट ऑडिबल ठीक है जोरे कहला यस एनी अदर स्कूल व्हेन डिड ही क्रिएट हिस्ट्री व्हेन डिड ही एटा गुटे कोर्स स्कूल लागि छी पिला माने कहला यस माइक्रोफोन टिके धरि कहला पिला माने ऑनसीन पैसेज इज वेरी इंपोर्टेंट पिला माने this part of your question paper is very very important if you will attend attentively you will be able to get 5 marks 5 out of 5 पिला माने 5 रो 5 मिलिबो ठीक अछि when did he create history in India's favor yes he create history when he create history yes when he hitting 6 sixes in 1 hour yes ठीक अछि thank you sit down so when did he create history he created history पिला माने during the 2007 T20 World Cup ओके एटा होची तार जिनसडा देखो पिला माने ठीक प्रश्न रो माने कोन हला पिला माने टिके सामान्य चेंज अछि किछि डिफिकल्ट नाही केते बेले से इतिहास सृष्टि करले टाइम ता कहूची बोले कोन टाइम कहूची माने ड्यूरिंग ता गोटे टाइम ड्यूरिंग गोटे टाइम रो शब्द प्रिपोजिशन नहीं पिला माने तेना हम ड्यूरिंग को धरिबा तो एठी कोन लिखिबा प्रथम ही ता को बड़ लिखिबा ही लिखला परे डी देसी क्रिएट रे मिसी गेला ही क्रिएटेड हिस्ट्री देखो पिला माने केम देला ही क्रिएटेड history during the 2007 T20 World Cup एतिके पिला माने लिखिबा प्रैक्टिस करो पिला माने घरे प्रैक्टिस करो डेफिनेटली विल बी एबल टू आंसर बिल्कुल डरनी पिला माने फियरलेस हे कि एग्जाम लिखो तुम पाखरे एबिलिटी अछि यू हैव द पोटेंशियलिटी तो कोन हला पिला माने ही क्रिएटेड हिस्ट्री ही एटी क्रिएटेड काहे गेला पिला देखो जदी डीड अछि माने वर्ब को पास्ट टेंस कर दबो पूरा संगे संग भर पास्ट टेंस माने सर मार्क काटी गेली ही क्रिएटेड हिस्ट्री ड्यूरिंग 2007 T20 वर्ल्ड कप राइट ठीक अछि आ गुटे क्वेश्चन अछि एटा तो सहज अछि हु वाज द कैप्टन देन MS Dhoni very good MS Dhoni very good you are right correct very good answer MS Dhoni हेले MS Dhoni आसी गेला हेले हमें कोन करबा ना हु जदी अछि पिला माने प्रॉब्लम किसी हबनी ए हु जगह लिखि देबा MS Dhoni was the captain then सेते बेले MS Dhoni कैप्टन थिले वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट को जीवा व्हाट टर्न स्मॉल पैराग्राफ पिला माने मु भाबु छी डिफिकल्टी किछि हबनी फाइंड आउट द आंसर व्हाट टर्न द मैच इन इंडिया's फेवर व्हाट टर्नड द मैच इन इंडिया's फेवर केउ घटनाटी बुझी परछो तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मु तो उड़िया रे कहू तुमको व्हाट टर्न द मैच इन इंडिया's फेवर Yuvraj quick timing and confidence turned the match in India's favor right very good congratulations brilliant very good answer बढ़िया सेमती पिला माने करिवो देखो एटी लिखाई छै कोन देखो युवराज क्विक टाइमिंग केमती से 6 मार्क देखिलो फटाफट टाइमिंग केमती यूज करथिले क्विक टाइमिंग एंड कॉन्फिडेंस these two things one is quick timing and another is
confidence. Direct answer. पिला माने गोटे आंसर एमती पूरा डायरेक्ट थिबो. एठी तुमको टेंस पेंस किछि खोजिया भी पड़िबो नाही पिला माने. देखो एठी डीड अछि नै कि तेणु एठी डीड नाही. हां व्हाट टर्न द मैच अछि यस. क्विक टाइमिंग एंड कॉन्फिडेंट टर्न हेगला भर द मैच इन इंडिया फेवर. सो पिला माने एमती जदि हम चेष्टा करिबा हेले पिला माने देखो आराम से हमें ताकू कोन करि परिबा. हमें आंसर ताकू हमें करि परिबा. बुझु छ तो पिला माने. किंतु जदि हमें चेष्टा न करिबा ताले तो आंसर हे परिबोनी ना. हबो पिला माने हे परिबो नाही. एटी देखो आंसर गुडा तुम आसीला देखो जहां सब कहिदलो ठीक अछि. ओके वर्तमान आमे आ गोटे पैसेज पिला माने करबा. नेक्स्ट गोटे पैसेज करबा. एई पैसेज करबा. एटा गोटे बढ़िया पैसेज टे. आमे फटाफट करबा पैसेज को देखो पिला माने तुमे भी पढो सेम टाइम मूवी देखो पढि दउछि. दिस पैसेज इज अबाउट गोटे हमर सुंदरगढ़ ऊपर. सो यू मस्ट बी वाचिंग द फोटो एंड दिस इज द photograph of Dilip Tirki, the famous hockey player of India, especially from Sundargarh. Okay, so Sundargarh is a beautiful district on western Odisha. Okay, beautiful district in western Odisha. So you will have to write in western Odisha. Okay, known for its green forest, clean environment, and friendly people. Okay, Sundargarh is a beautiful district and it is known for its green forest, मन रखो क्लीन एनवायरनमेंट एंड फ्रेंडली पीपल. बुझी अछि पिला माने आराम से. ग्रीन फॉरेस्ट अछि सुंदरगढ़ रे, क्लीन एनवायरनमेंट, फ्रेंडली पीपल. दिस डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग मेनी टैलेंटेड हॉकी प्लेयर्स. दिस डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग मेनी टैलेंटेड हॉकी प्लेयर्स. दैट मीन्स सो मेनी टैलेंटेड एक्सपर्ट हॉकी players have been born in our district. So we are proud of them. Some of whom have played for Indian national team also. So many of the hockey players of Sundargarh district also have played for our nation, for the country. Okay, and one of them is Dilip Tirki is one of them. So you must have heard the name of Dilip Tirki. Okay, from Sonamuda, Sundargarh. He has played for the Indian team. Okay, in hockey. So he is admired across the country for his skill and dedications. So we admire Dilip Tirki across the country because of his skill, the technique he used, and his dedication not only for Sundargarh district but also for the nation. Okay, every morning young children of Sundargarh district practice hockey. सबुदिन hockey पिला माने एठी खेलंती on the open fields, dreaming of becoming great players like him. So they dream of to become a hockey player like Dilip Tirki. They are the followers of Dilip Tirki. Sundargarh is also rich in minerals. Sundargarh is also rich in minerals and industries. There are so many industries in Sundargarh districts, so which provides job opportunities to the people. Okay, Sundargarh लोक मानक को job opportunities दोउची कोन पाई mineral पाई दोउची, industries पाई दोउची. And along with its natural beauty, Sundargarh is also famous for its natural beauty. There are so many natural beautiful sites in Sundargarh districts. You must have heard Khandadhar. Okay, beautiful sites. And sports culture. Sports culture, Sundargarh is often called the cradle of hockey. The cradle of hockey. Sports culture pai Sundargarh ku hockey ro cradle of hockey mane pela mane hockey ro entudi sala koha jay. You must have heard the word while reading the poem. Village song re padicho cradle. Okay, so cradle of hockey बोली कि कहा जाए. So वर्तमान on the basis of this paragraph पिला माने आमे एठी कोन करिबा ना गोटे आमे एठी क्वेश्चन आमे या पई करिबा. ठीक अछि. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सुंदरगढ़ फेमस फॉर. व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 को सेपटे पुनी पैराग्राफ ता मु देखे दूची पिला माने व्हाट इज सुंदरगढ़ फेमस फॉर. व्हाई इज सुंदरगढ़ फेमस. व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन मन ला पिला माने खाता टिपि रखो. व्हाट इज सुंदरगढ़ फेमस फॉर. ओके, সেই কোশ্চেন आंसर বর্তমান এটি দিও. What is Sundargarh famous for? Yes. Anybody else? Sundargarh is famous for producing many talented hockey players. Okay. Yes. It is famous for many talented hockey players. You have given very good answer. Besides it, Sundargarh is also famous for certain other things also. बाहर भी आउरी फेमस अछि नोडको आउरी आसीबो. What may be the other possible supporting words to answer the question? Green forest, clean environment and friendly peoples.
यस वेरी गुड वाह बढ़िया कोच अछि देखो सुंदरगढ़ कौन ग्रीन फॉरेस्ट नहीं पिला माने ग्रीन फॉरेस्ट अछि पिला माने नहीं कि ग्रीन फॉरेस्ट एटा आसला क्लीन एनवायरनमेंट आसला फ्रेंडली पीपुल आसला हला खाली सेतिकी लेखिले हबनी ता बाहर कोन अछि पिला माने टैलेंटेड हॉकी प्लेयर्स जोटा कि तुम प्रथमे कहि दिथला आंसर ता बहुत बढ़िया कहितलो सेटा तार की आंसर सेटा तार की आंसर ता तो एटा हबो टैलेंटेड हॉकी प्लेयर्स सो अलोंग विथ टैलेंटेड हॉकी प्लेयर सुंदरगढ़ इज आमे केमती आंसर करबा सुंदरगढ़ इज क्वेश्चन सेठी अछि पिला माने क्वेश्चन अछि कि नहीं एटी अछि कि नहीं फर्स्ट कोन करबा सुंदरगढ़ इज फेमस फॉर सब्जेक्ट बने देला इज टाको एफा बनेला जो वर्ब अछि सेही वर्बटा रहइबो अलगा वर्ब वाज हबनी पिला माने भूल रे वाज लिखि जंती सुंदरगढ़ इज फेमस फॉर तापरे आसला ग्रीन फॉरेस्ट क्लीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली पीपुल एटी एंड टाको काटि देबा एंड एठी तापरे नै जिबा एंड मेनी टैलेंटेड हॉकी प्लेयर्स राइट पिला माने ठीक है आंसर ठीक अछि तो पिला माने हला करि परियो फर्स्ट क्वेश्चन बढ़िया आंसर कलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन जाईची हु इज वन ऑफ द फेमस हॉकी प्लेयर्स फ्रॉम सुंदरगढ़ फैक्चुअल क्वेश्चन देखो प्राय तो फैक्चुअल क्वेश्चन Dilip Tirki is one of the famous hockey players from Sundargarh. Dilip Tirki is one of the famous hockey players from Sundargarh. very good you are speaking confidently सेमती समस्त पिला माने चेष्टा करो आई एम प्राउड ऑफ यू यू हैव गिवन वेरी गुड आंसर सो पिला माने हु अछि देखो से जेटी जानिला आगो पैराग्राफ रु पास से केमती कोला हु जगह रे दिलीप तिर्की ताको लिखि दबा सो दिलीप तिर्की इज वन ऑफ द फेमस हॉकी प्लेयर्स फ्रॉम सुंदरगढ़ वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 3 को देखो व्हाई डू चिल्ड्रन प्रैक्टिस हॉकी इन द ओपन फील्ड्स व्हाई डू चिल्ड्रन प्रैक्टिस हॉकी इन द ओपन फील्ड्स क्वेश्चन बुझलो तो व्हाई डू काहे की चिल्ड्रन प्रैक्टिस अभ्यास करंती व्हाई डू चिल्ड्रन प्रैक्टिस हॉकी इन द ओपन फील्ड माने कोन खोला पड़िया नहीं कि मिडोस जेमती गाँ मानक समस्ते हॉकी सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे प्राय समस्ते हॉकी खेलती हॉकी तो सुंदरगढ़ एंतुड़ी शाला नहीं कि से हॉकी पाई तो सुंदरगढ़ समग्र पृथ्वी पृष्ठ रे ना अछि राइट ठीक अछि सो चिल्ड्रन माने काहे कि हॉकी खेलती क्वेश्चन मन रे व्हाई डू चिल्ड्रन प्ले हॉकी इन द ओपन फील्ड्स देखो कोडी अछि ओपन फील्ड गोटे वर्ड सेठी क्वेश्चन थला ए ओपन फील्ड वर्ड को धरि के चलो एठू ताकू नियो बुझिलो पेस्ट करबा ता करे देखो पिला माने ओपन फील्ड कोडी अछि कि नहीं अच्छी गोटे ना अच्छी तो पिला माने ओपन फील्ड गोटे मिल गला हे देखो कोन गोटे ओपन फील्ड मिललानी जो माने पिला माने न जानुच सेठू ओपन फील्ड को आनी कि सेही पाखा पाखी ते आंसर टा को लिखि देले भी पिला माने किछि नले हाफ मार्क भी पाई जिवो सो हु विल आंसर दिस क्वेश्चन ओके हु विल आंसर दिस क्वेश्चन ट्राई योरसेल्फ फ्रॉम सुभाष चंद्र हाई स्कूल करला ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाई डू चिल्ड्रन प्रैक्टिस हॉकी ऑन द ओपन फील्ड्स कौन कहीं प्रैक्टिस करती खोला पड़िया रे सकाल पाइले से माने पखाल भात खाई क्रिकेट सॉरी हॉकी खेलवा को पळे जानती पड़िया को कहीं खेलबार गोटे बहुत गोटे स्पिरिट तांकर अछि नै कि हेले कोटा बो आंसर देखो अछि पिला माने चिल्ड्रन प्रैक्टिस हॉकी ऑन द ओपन फील्ड कौन पई तापरे लिखा देखो कौन अछि ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग ग्रेट players like him yes good very good becoming great player like him बस ठीक अछि बहुत बढ़िया आंसर तो यू विल गेट 1 मार्क मु टिके एडिशन कर देबी नै कि हला हमें कोन लिखिबा चिल्ड्रन प्ले बा सॉरी चिल्ड्रन प्रैक्टिस हॉकी ऑन द ओपन फील्ड्स ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग ग्रेट प्लेयर्स हला लाइक हिम ता किए लाइक दिलीप हिम ता किए लाइक दिलीप तिर्की हिम ता किए दिलीप तिर्की माने मु भी सचिन बनिबी मु भी विराट कोहली बनिबी मु भी दिलीप तिर्की हेबी एई भलिया स्वप्न समान देखंती एटु आमे कोन करबा एटी कोन करबा आमे ताकू एटा को दिलीप तिर्की कर देबा हिम माने तमे हेले तुमको परीक्षा रे मार्क दिया जीवो ओके यू विल गेट 1 मार्क बट एटा को कोन करबा दिलीप तिर्की कोले आउरी बढ़िया हबो बा आउ टिके भलो कोले एम्ति करबा बेटर करबा केमति चिल्ड्रन प्रैक्टिस हॉकी ऑन द ओपन फील्ड्स ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग ग्रेट प्लेयर्स लाइक दिलीप तिर्की इन फ्यूचर आउ टिके जदी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड तुम भलो छी इन फ्यूचर लिखले आउरी बढ़िया हाउएवर यू हैव गिवन वेरी गुड आंसर एंड यू विल बी अवार्डेड 1 मार्क थैंक यू बहुत बढ़िया थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन को जिया पिला माने बर्तमान पुनी गोटे क्वेश्चन को जिबा देखिलो चेष्टा कलो ओके सो वी हैव 5 मिनिट्स लेफ्ट ओके क्वेश्चन नंबर 4 which sports is Sundargarh
specially known for? Sundargarh is specially known for what? Which sports? Which sports activity Sundargarh is specially known for? Puchar pila mane which hochi ta? Which sports is Sundargarh specially known for? बुझेला पिला ने क्वेश्चन देखिलो देखो पिला मने देखो केउ स्पोर्ट्स पई देखो केउ स्पोर्ट्स है ओवरऑल क्वेश्चन अछि पिला मने देखो एटा ओवरऑल हमें कोन गुडिया रे कहले तुम आराम रे आंसर कर देबो सुंदरगढ़ केउ स्पोर्ट्स पई प्रसिद्ध केउ खेल पई प्रसिद्ध ओके इट्स ऑल राइट हुई स्पोर्ट्स हॉकी 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 अब नहीं यस वेरी गुड हेले बर्तन ताकू आंसर करो लगे किरी केमती करबा मु जेमती बतौथिले आराम चेष्टा करो केमती करबा पिला माने प्रथम काकू नबा फर्स्ट सब्जेक्ट की सब्जेक्ट हला सुंदरगढ़ सब्जेक्ट हला की पिला माने सुंदरगढ़ हेले सुंदरगढ़ तापर भर पळे हां सुंदरगढ़ कुहा सुंदरगढ़ बढ़िया कुछ वेरी गुड सुंदरगढ़ तापर भर के सुंदरगढ़ पर भर किए चेष्टा करो वेरी गुड बस गाड़ी आकु चलला बढ़िया कहूछ सुंदरगढ़ इज तापरे तापरे कोन देखिछि को जगह कहूछि स्पेशली नोन फॉर हॉकी हां बढ़िया बढ़िया हां नोन फॉर हॉकी वेरी गुड स्पेशली स्पोर्ट्स नो फॉर हॉकी वेरी गुड बढ़िया बढ़िया थैंक यू ठीक है केमती करबा सुंदरगढ़ इज specially known for the sports of hockey known for the sports of hockey सुंदरगढ़ केउ खेल पई प्रसिद्ध हॉकी पई प्रसिद्ध तेणु आंसर कोन करबा सब्जेक्ट को देखो ए जानियो पिला माने अनेक कोन करंती मु देखे मैट्रिक वैल्यूएशन मोस्ट ऑफ द टाइम आई डू वैल्यूएशन ओके मैट्रिक वैल्यूएशन कला ले मु देखे पिला माने कोन करंती अनेक पिला माने लिखि दांती केमति लिखिबे व्हिच सुंदरगढ़ स्पोर्ट्स इज नोन फॉर हॉकी एमती लिखिदेवे माने एई वार्ड को डब्ल्यूएच वार्ड को भी लिखिदेवे आंसर को भी लिखिदेवे सेमती लिखिदेले कोन हो पिला माने you will be given only half mark okay you will not be given full marks तुमको फुल मार्क मिलिबो नाही तेनु आंसर ता लिखिला बेले ताको स्टेटमेंट सेंटेंस कर देबो ओके डब्ल्यूएच सेंटेंस को कन्वर्ट करिवो ओके यू हैव गिवन वेरी गुड आंसर सुंदरगढ़ इज स्पेशली नोन फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ हॉकी वेरी गुड नाउ द लास्ट क्वेश्चन The last question is an inferential question. The last question is an inferential question. Inferential question भी आसे पिला माने टिके इनडायरेक्ट क्वेश्चन पड़िबो पिलाटी तो 5 रु 5 रखि देबो टिके गोटे इनडायरेक्ट थिबो बट सेटा भी इजी थाए चेष्टा करले करि पारिबो ओके यू विल हैव टू थिंक एंड राइट द आंसर व्हाई सुंदरगढ़ इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ हॉकी द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन it is an inferential question or you can say ग्लोबल क्वेश्चन भी तो हे परिबनी बट इन्फरेंशियल अछि ओके ठीक अछि सुंदरगढ़ इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ हॉकी सुंदरगढ़ को काहे की हॉकी रो एंतुडी शाला कुहा जाय देखो पैसेज को देखो ओके व्हाई सुंदरगढ़ इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ हॉकी एनीबॉडी एल्स के कहबो चेष्टा करो एनी अदर स्कूल ताटी अन्य स्कूल देखिले पिला माने आंसर देबे एटा कहबे पिला माने व्हाई सुंदरगढ़ इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ हॉकी क्रेडल क्रेडल ऑफ हॉकी हॉकी रो एंतुडी शाला सुंदरगढ़ को काहे की कहा जाए ओके Sundargarh is हमें called जदी the cradle of hockey. यस सुंदरगढ़ इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ Sundargarh हॉकी is called the cradle of hockey because of its Sundargarh natural beauty is and called the sports cradle of culture. hockey because it's producing many talented hockey players. वाह वाह वेरी गुड कौन तम ना बाबू बढ़िया आंसर कहलो व्हाट इज योर नेम Subham Lenka. Subham Lenka. You are genius. Subham Lenka. What is your name? What is the name of your school? Koil Vidyapitha. Very good. Thank you. Koil Go ahead Vidyapitha. with the- Thank you. Go ahead with a positive attitude. Okay. Very good. Thank you. So, देखो पिला माने एठी अछि कोना why सुंदरगढ़ is called the cradle of hockey. सुंदरगढ़ को काहे की cradle of hockey कहा जाए? Because जो आंसर देले because Sundargarh has produced many talented hockey players.
it has produced many talented hockey players. ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ talented hockey player ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ବା ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ତା ମାଟିରେ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଗୋଟେ କ୍ରେଡେଲ ଅଫ ହକି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବା ତାକୁ ସେ ବାବୁ ଯେମିତି ବି କହିଲ ସେମିତି ବି ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ ବା ଆମେ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ upon you ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ is called the cradle of hockey because many talented hockey players have been born in it ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଆନ୍ସର ଦେଖିନିଅ, ସମସ୍ତେ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦେଲ। why Sundargarh is called the cradle of hockey? Sundargarh is called, ଦେଖ ଏଇଟା ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ, Sundargarh is called the cradle of hockey। ତାପରେ because ଲଗେଇଦେଲ ହେଲା। ଇନଫରେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ because ଲାଗେ, because ଦେଖ ସେ ବାବୁ ଯୋଉ କହିଲେ many talented hockey players have been born here or you can say it has produced many talented hockey players, or you also even can say it has given birth to many hockey players. So Sundargarh is called the cradle of hockey. Very good पिला माने बहुत बढ़िया आंसर देइछो। So rightly time for your homework. Practice at least 5 unseen passages from your test paper before your pre-board examination. पिला माने pre-board examination रो पूर्वरु तमे कोन करिवो, अति कम रे 5टा 5 unseen passages practice करो। Definitely you will be able to answer all the questions and do not quit or leave unseen passage, which is very very important so far as your percentage of marks is concerned. So that's all from my side about unseen passage. Thank you. Have a good day.